Now, the next topic we'll start today, that is coordination. So, coordination is treated as one of the most important function of management. It is also treated as the essence of management. Now, here is the meaning. Coordination is a process by which managers synchronizes the activities of different departments in an organization. एक organization में बहुत सारे departments होते हैं, तो जो coordination function है ये क्या है, एक process है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको सिंक्रोनाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं. इट में also be treated as coordination is also be treated as a force. ये एक force है which binds all the other functions of management. Here other functions means planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये एक ऐसा function है जो इन सभी other functions को bind करता है. Now coordination the essence of management. कैसे आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है. सो फर्स्ट पॉइंट हियर वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के जितने भी दूसरे फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है. द कोऑर्डिनेशन इट बिगिंस एट the planning stage when the top level management make plans for the whole organization. This coordination begins with that. Next, under organizing, coordination is also required for organizing all the required resources. When the middle level management engaged in organizing the required resources, an organizational structure is developed. So at that stage they need coordination. Then staffing here means staffing process. Under staffing process what has been done, the required staff is recruited, selected and trained, and in this function there is a need of coordination. Direction, when the staff has been selected to work in the organization, they need some kind of guidelines, instruction. So coordination is also required at that level. Here controlling function means comparing the actual performance with the standard performance which has been decided under planning. Actual performance को जब standard performance जो कि planning function में decide करी होती है, इस controlling function में उसको compare करा जाता है. This function ensures no discrepancy between plan and actual performance. इस function के चलते प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस ना आ सके, ये फंक्शन इस बात को इंश्योर करता है. सो फॉर ऑल द फंक्शंस कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो इफ वी थिंक अबाउट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. सो टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल, here at top level coordination is required to integrate all the activities of the organization. जो top level है वहाँ पे coordination की requirement क्यों है? क्योंकि जो भी organization के अलग अलग departments हैं, उन departments की activities को integrate करने के लिए they are in need of coordination. Middle level management, this coordination is also required at middle level management. क्यों? क्योंकि at this level they are in need of coordination to balance the activities of different department. हर department के अलग individual goals होते हैं जो कि वो isolation में work करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन फंक्शन की हेल्प से जितने भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या करा जाता है, दे आर टू बी बैलेंस्ड. क्योंकि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है. लोअर लेवल मैनेजमेंट, एट दिस लेवल दे आर इन नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. वाई? टू इंटेग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर. इस लेवल पे जो हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स. एक्चुअल वर्कफोर्स इसी लेवल पे होती है. सो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग जो है उनका काम करने का तरीका है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड हेयर टू इंटेग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल दीज वर्कर्स. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि इन सभी वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंटेग्रेट करा जा सके to the achievement of organizational goals. Now next here is coordination is the most important function of an
ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑर्डिनेशन है इट एंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट। अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एम्प्लॉय के अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्क। सो वर्कर्स के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है इट एंश्योर्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट। तो यानी कोऑर्डिनेशन के चलते मैनेजर्स अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि दे शुड पुट देयर एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑटोमेटिकली उनके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो एंश्योर्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन के चलते जो है संस्था में ये चीज़ की इंश्योरिटी करी जाती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्लान करे हैं दे मस्ट बी अचीव्ड एट मिनिमम कन्फ्लिक्ट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स आते हुए इन ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली स्मूथली अचीव करा जा सके। सो यार व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है इट इज़ ट्रीटेड एज अ थ्रेड, और जो अदर फंक्शंस है, अदर फंक्शन मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अदर फंक्शंस हैं, दे आर लाइक फ्लावर्स। और जो थ्रेड है वो फ्लावर को क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड द कोऑर्डिनेशन फंक्शन टाइज दीज फ्लावर टू फॉर्म अ गार्लैंड। तो कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है जिसमें कि इन दूसरे फंक्शंस को टाई कर दिया जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गार्लैंड बन जाता है, यानी कि अलग दूसरे सभी फंक्शंस की बेटर परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेशन के चलते अराइज हो पाती है, जिससे अल्टीमेटली क्या जिसका नतीजा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।